Good morning. In this video, we will study the three vows by Mulk Raj Anand. The three vows, VOWS, इसको वाव भी लोग बोलते हैं और कुछ लोग इसको वो भी बोलते हैं, सीधे वो. द थ्री वोज या द थ्री vows. So, Mulk Raj Anand has written this chapter. This is a play on Mahatma Gandhi. We all know who Mahatma Gandhi was. He was our father of nation, and he was known for his simplicity of lifestyle. He was a firm believer in non-violence and a strict discipline. And so we will see in this play that Mulk Raj Anand has highlighted these very qualities of character. In this video, we will study about Mahatma Gandhi and his lifestyle. इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे. मुल्क राज आनंद ने इस पाठ को लिखा और गांधी के अंदर उनके जीवन में अनुशासन का कितना महत्व था, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी आर जस्ट कमिंग टू द पॉइंट एंड वी विल स्टडी द चैप्टर लाइन बाय लाइन. सो मुल्क राज आनंद, फेमस नोवेलिस्ट. मुल्क राज आनंद from 1906 to 2004, internationally known novelist and an art critic. He is known as a novelist, उपन्यासकार, and an art critic, कला आलोचक. Began his career as a writer of fiction in Sabarmati Ashram of Mahatma Gandhi. Sabarmati Ashram was known for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lived there, where he drafted his first novel. In that ashram, Mulk Raj Anand has drafted his first novel, The Untouchable. The Untouchable is a novel written by Mulk Raj Anand, and this first novel by Mulk Raj Anand has been drafted in Sabarmati Ashram. Author of more than 40 books, this great writer Mulk Raj Anand has authored more than 40 books. He has alternatively engaged in teaching, and his works were of teaching, writing and journalism. Anand is known for his innovativeness. Innovativeness means नवाचारी, ये नए नए प्रयोग करते थे. एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नोवेल फॉर्म, एंड नोवेल फॉर्म के रूप में साहित्य का जो नोवेल फॉर्म है उसकी पकड़ के लिए उसकी जो मौलिक पकड़ होती है वो उनमें है. तो इनोवेटिवनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच की ओरिजिनलिटी, मौलिकता टू द नोवेल फॉर्म के लिए उनमें है. उनके लेखन में नोवेल के लिए जो उनकी पकड़ है वो एकदम मौलिक है. हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड कुलीज. अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स वेयर कुलीज, द अनटचेबल एंड टू लीव्स ऑफ ए बर्ड. द थ्री वोज is the first scene of Little Pledge of Mahatma Gandhi, which is again the first part of his big novel, and so he plays his part. Actually the big novel is, and so he plays his part. Okay, from that novel the three vows has been taken, and this is also the first scene of Little Pledge of Mahatma Gandhi, and this Little Pledge of Mahatma Gandhi has been taken from, and so he plays his part. Anand here reveals the Mahatma saint politician as an immediate human being of the earthy. इस धरती पर घूमने वाले वो ऐसे महामानव के रूप में उन्होंने गांधी को चित्रित किया जो सेंट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, वो महात्मा थे.
विथ हिज हेड रेज टू द स्काई, उनका सर आसमान की तरफ था, उनका मस्तक, उनका माथा आकाश के ऊंचाइयों को छूने वाला था। उनकी सोच, माथा का मतलब यहाँ सोच है, थिंकिंग, तो ये उनकी सोच आसमान की ऊंचाइयों को छूती थी और उनके कदम जमीन पर थे। यथार्थ से लेकर के वो आसमान की ऊंचाई तक वो सोचने वाले लोग थे। कौन? महात्मा गांधी। ही एक्सर्प्ट ऑल्सो लेज इम्फेसिस दिस, द एक्सर्प्ट, यह जो उदाहरण है, यह जो नाटक हम लोग पढ़ेंगे, अवतरण जो यह लिया गया है, यह पाठ का अंश है, हैज ऑल्सो लेज इम्फेसिस, या इम्फेसिस देता है, जोर देता है, ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ए रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ। ये स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ रूटीन इज मस्ट टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासन होना चाहिए और इसके लिए एक निश्चित रूटीन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ routine. You must make a routine and then follow that. If you will follow your routine strictly, then you will become successful. Otherwise, your energy will never be channelized, and if you will invest your energy on so many fronts, then you are likely to be a failure. So, a failure person is never wanted, although we say that failures are the pillars of success. But ultimately, we have to get success, not failure. So my friend must follow this chapter, must get lesson from the life of Mahatma, that strict discipline is very, very important in our life. Without it, we cannot get anything. So this chapter is for you. Work in small groups and discuss the following questions. What kind of dress do people around you usually wear? In India, in hot season, we wear loose cloth, while in cold season, we wear woolen cloth and strict cloths. In the dress of a man, is the dress of a man important? How? Yes, the dress of a man is important because it is able to hide our body, it is able to make us feel good, it is the symbol of our culture and geographical surrounding. Which dress do you feel more comfortable? आप कौन ड्रेस को अच्छा पसंद करते हैं? तो आंसर विल बी पर्सनल. सम पर्सन में से दैट दे लाइक सफारी सूट, सम पर्सन में से दैट दे लाइक शर्ट पैंट टाई, सम से टी शर्ट, सम से कुर्ता पैजामा, सम से धोती कुर्ता, मे बी. So such questions are personal. Your personal answer is hoped here. So whatever you feel, express that boldly. The scene is a corner of the veranda of Mahatma Gandhi's cottage in Sabarmati Ashram, Ahmedabad. अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में. वहाँ पर साबरमती आश्रम है, वहीं का सीन है. क्या है सीन? द सीन के सीन इज ए कॉर्नर ऑफ द वरांडा ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज. महात्मा गांधी जहाँ रहते थे, जिस घर में, उसके सामने वहीं का सीन है. वो वरांडा है, वरांडा पर जो कॉर्नर है वहाँ का सीन है. एट बोथ एंड्स ऑफ द वरांडा आर स्मॉल रूम्स. वरांडा के दोनों तरफ छोटे छोटे रूम हैं, कोठरी जिसको कहते हैं. हुज डोर्स आर ओपन, उसके दरवाजे खुले हैं. इन ए बिग रूम बिहाइंड द वरांडा ए वाइट वीमेन कैन बी सीन टाइपिंग. और एक बड़े से रूम में बिहाइंड द वरांडा, वरांडा के पीछे के बड़े से कमरे में एक सफ़ेद श्वेत महिला वहाँ टाइपिंग कर रही है, वो देखी जा सकती है. व्हाइल एन इनमेट इज राइटिंग ऑन ए लेजर. और उसके बगल में बैठी एक आदमी है जो लेडीज है, जो लिख रही है लेजर पर. हालांकि लेडीज है कि वो जेंट्स है ये क्लियर नहीं है. व्हाइल एन इनमेट, उसकी करीबी है कोई, जो इज राइटिंग ऑन ए लेजर, वहाँ टेबल पर लिख रही है बगल में रख के. सो द थ्री वॉज का ये नेक्स्ट. ए फीमेल इज सीन स्पिनिंग बाय द डोर ऑफ द cottage in the room on the right. A female is seen spinning by the door of the cottage in the room on the right. A female है, ए फीमेल को आप देख सकते हैं जो स्पिनिंग है, जो चरखा चला रही है. चरखा महात्मा गांधी की पहचान. स्पिनिंग बाय द डोर ऑफ द कॉटेज,
वो कॉटेज की डोर पर ही बैठ करके इन द रूम ऑन द राइट साइड का ये सीन है। फर्दर अवे इन द वरांडा ऑन द राइट आर 2 सेक्रेटरीज करेक्टिंग प्रूफ्स। जो किताब वगैरह छापते हैं हम लोग या कुछ भी फाइनल पेपर लिखते हैं तो पहले उसका प्रूफ रीडिंग होता है। जब प्रूफ रीडिंग पास हो जाता है, प्रूफ रीडिंग हो गया तभी वो छपता है फाइनली। तो प्रूफ रीडिंग में होता यह है कि राइटिंग का जो मिस्टेक्स है उसको हम लोग ठीक करते हैं। तो फर्दर अवे उससे कुछ दूर हटके इन द वारंदा में ही ऑन द राइट साइड में आर 2 सेक्रेटरीज, 2 सचिव हैं जो बैठे हुए हैं, करेक्टिंग प्रूफ्स, दे आर करेक्टिंग प्रूफ्स, वो प्रूफ रीडिंग का काम कर रहे हैं। द सेज इज सीन रिक्लाइनिंग बैक। सेज का मतलब है महात्मा गांधी से, तो सेज मतलब संत, बहुत ज्ञानी और पवित्र आदमी को हम लोग सेज बोलते हैं। तो महात्मा गांधी वाजे सेज। द सेज इज सीन रिक्लाइनिंग बैक, वो पीठ सटा के बैठे हुए हैं। ऑन ए वुडन प्लांक, एक लकड़ी के तख्ते पर, कुर्सी कहिए उसको, आराम कुर्सी की तरह। बैक रेस्ट चेयर, वो रेस्ट चेयर है, ठीक है, लकड़ी का। व्हाइल ए स्मॉल डेम्योर वुमन, एक छोटी सी महिला है जो कस्तूरबा गांधी उनका नाम है, उनकी वाइफ है। इन ए व्हाइल होम स्पन, वो घर की बुनी हुई साड़ी पहनी हुई हैं। ये प्लास्टरिंग हिज बेली, बेली मतलब पेट, विथ थिन मड, वो मिट्टी का लेप बना करके उसे उनके पेट पर लगा रही हैं। मतलब ये देसी इलाज हो रहा है गांधी जी का। द टेबल ऑन द लेफ्ट ऑफ महात्मा हैज बुक्स, महात्मा के बगल लेफ्ट में जो टेबल है उस पर किताबें रखी हैं, एंड पेपर्स स्टैक्ड ऑन इट, और पेपर भी उस पर रखा हुआ है। द वन ऑन द राइट हैज पेंसिल्स, द वन ऑन द राइट हैज पेंसिल्स, और राइट साइड में क्या है, पेंसिल्स है, पेन है, इंक पॉट है, दवात है। ये वाइट पिक्चर एक घड़ा रखा हुआ है सफ़ेद रंग का, कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, एंड दैट इज कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, वेट मतलब भीगा हुआ कपड़ा उस पर से रखा हुआ है, उसको कवर्ड है। विथ 3 ब्रास कप्स बाई इट, उसके बगल में 3 को ब्रास का कप रखा हुआ है। ऑन द राइट इज ए बर्ली ब्राउन मैन, और उनके बगल में एक बर्ली ब्राउन मैन है, एक भूरे कलर का आदमी है, ब्राउन मैन है जो बैठा हुआ है। महात्मा गांधी जी सेक्रेटरी, वो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है महादेव देसाई। महादेव देसाई उनका नाम है। विथ पेन एंड पेपर, ही इज विथ पेन एंड पेपर, रेडी टू टेक डाउन वॉट एवर द मास्टर में से, वॉट एवर द मास्टर में से, हिज ऑनर में से, ही मास्टर इज महात्मा गांधी। तो ही वॉज द सेक्रेटरी मोहनदास करमचंद गांधीज सेक्रेटरी, हिज नेम वॉज महादेव देसाई, he was with pen and paper and he was ready there, he was sitting there to take orders by Mahatma. Krishan Chandra Azad enters. In that time, Krishan Chandra Azad named a person came there. The Mahatma points with his hand to a mat. महात्मा ने उनको चटाई पर बैठने के लिए बोला, इशारा किया कि बैठ जाइए। द विजिटर सीट्स डाउन क्रॉस लेग्ड, वो पालथी लगा करके बैठ जाते हैं। सम व्हाट अनईजी, ऐसा बैठने में उनको अनईजी महसूस होता है। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोल्ड हीज हार्ड कर्ड्यूडोए ट्राउजर्स इनटू द लोटस सीट, वहाँ बैठने में उनको वो जो अंग्रेजी वाला जो कपड़ा पहने हुए हैं, फुल पैंट शर्ट, कर्ड्यूडोए ट्राउजर्स, वो जो फुल पैंट है उसको मोड़ करके बैठने में उनको पालथी लगा के बैठने में दिक्कत हो रही है। महात्मा गांधी टू कस्तूरबा, वो कस्तूरबा की तरफ देख करके महात्मा गांधी बोले, अच्छा कस्तूरबा गांधी स्मूदेंस द महात्माज बेली विथ ए वेट टॉवेल, अब वो कस्तूरबा गांधी महात्मा के पेट को वेट टॉवेल से स्मूथ कर रही है, साफ कर रही है, चिकना कर रही है, मिला रही है, मतलब पूरा। पैट्स द स्टोमैक, उनके पेट को वो थपथपा रही है। विथ लाइट स्लैप्स, हल्के हल्के हाथों से। असेंबल्स द मड पैक मटेरियल, वह मड पैक का जो मटेरियल सब है कीचड़, उसको वो जमा कर रही है। हीव्स हिज बॉडी अप एंड विड्रॉज, उनके पूरे बॉडी से उसको अब मिला करके फैला करके उसको उनको ठंडा किया जा रहा है। कृष्ण चंद्र आज़ाद ऑकवर्डली जॉइंस हिज हैंड्स टू कस्तूरबा, कृष्ण चंद्र ने
आवाज कृष्ण चंद्र आज़ाद awkwardly joins his hands to कस्तूरबा। कृष्ण चंद्र आज़ाद ने गांधी जी को नमस्कार किया। Who moves a lever of the bed chair, उन्होंने एक बेड चेयर के moves a lever of the bed chair, who moves a lever of the bed chair, उन्होंने बेड चेयर को वहाँ से खिसकाया थोड़ा। लिफ्टिंग द बैक एंड देन वॉक्स अवे, वो थोड़ा पीछे हटा और थोड़ा वहाँ से निकल गए। अबेस्ट द विजिटर लिफ्ट हिज ज्वाइंट हैंड्स टू द महात्मा, हु रेजेज हिज राइट हैंड इन ब्लेसिंग इवन एज ही एडजस्ट द कॉटन कुशन अंडर हिज नेक एंड सिट्स बैक इन ए क्राउचिंग पोजीशन। और इस प्रकार से उन्होंने महात्मा को नमस्कार किया। अबेस्ट विजिटर लिफ्ट हिज ज्वाइंट हैंड्स टू द महात्मा, महात्मा को नमस्कार किए। हु रेजेज हिज राइट हैंड इन ब्लेसिंग, उन्होंने अपना राइट हैंड उठा के उनको ब्लेस किया। इवन एज ही एडजस्ट द कॉटन कुशन अंडर कॉटन कुशन अंडर हिज नेक एंड सिट्स बैक इन ए क्राउचिंग पोजीशन। और इस प्रकार से वो हाथ पांव मुड़ करके वो बैठ गए, क्राउचिंग पोजीशन, सिकुड़ करके बैठ गए। क्राउचिंग पोजीशन मतलब सिकुड़ के बैठना। द महात्मा लिफ्ट हिज आई टू द अपर पार्ट ऑफ हिज बाई फोकल ग्लासेज, उन्होंने अपने बाई फोकल ग्लास को अपर पार्ट को ऊपर उठाया। ही एंड लुक्स क्विजिकली एट द विजिटर, और विजिटर को ध्यान से देखा। द ग्लांस कन्फ्यूजेज द गेस्ट फ्रॉम द स्टेयर गेज ऑफ द महात्मा, इस तरह से जब गांधी जी उनको देखे तो वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। गांधी जी, डोंट यू फील हॉट इन द कॉर्ड्यूरॉय सूट, इस तरह से अंग्रेजी फुल पैंट में आपको गर्मी महसूस नहीं होती है। द ओनली सूट आई हैव आई केम फ्रॉम लंदन यस्टरडे, ये बोले कि नहीं मेरे पास एक ही सूट है, मैं कल ही लंदन से आया हूँ। इवन द इंग्लिश चेंज इनटू अल्पाका और कॉटन क्लॉथ्स, अंग्रेज तो अल्पाका का या सूती कपड़ा पहन लेते हैं। व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे, बॉम्बे में आते ही वे यहाँ का कपड़ा पहन लेते हैं। दे कैन अफोर्ड टू गो टू आर्मी एंड नेवी स्टोर्स, वे नेवी और आर्मी स्टोर में भी जा सकते हैं, वहाँ भी उनको आराम महसूस होता है। गांधी, एनी हाउ व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक ए मंकी, अब इस तरह से आप बैठे हुए हैं तो यू आर लुकिंग जस्ट लाइक ए मंकी, व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक ए मंकी। आफ्टर ए स्टडीज पॉज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, ये उनको सुन के खराब लगा। सो ही ऑल्सो आंसर्ड, महात्मा यू ऑल्सो लुक्ड लाइक ए मंकी व्हेन यू पुट ऑन ए फ्रॉक कोट, पिन स्ट्राइप ट्राउजर्स एंड टॉप हैट इन लंदन। उस आदमी ने, किसी आज़ाद ने गांधी जी को भी बोला कि जब आप भी फ्रॉक कोट और पिन स्ट्राइप ट्राउजर पहनते हैं, टॉप हैट लगाते थे लंदन में, तो यू आर ऑल्सो लुकिंग लाइक, यू वी आर ऑल्सो लुकिंग लाइक ए मंकी। उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि आप बंदर की तरह लग रहे हैं, तो ये बोला कि आप भी बंदर की तरह लगते थे जब पहने थे सब फुल पैंट शर्ट और हैट लगाए थे। गांधी जी स्माइलिंग, आई डोंट लुक लाइक ए मंकी नाउ, अभी मैं बंदर की तरह नहीं लगता हूँ। आई रियलाइज्ड व्हेन आई केम बैक होम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब मैं साउथ अफ्रीका से आया तो मैंने रियलाइज़ किया, इस बात को महसूस किया, दैट आवर फॉरेन क्लोथ्स रिमूव अस फ्रॉम द पीपल, कि हम लोग जो पश्चिमी विदेशी कपड़े पहनते हैं ये हमें अपने लोगों से काट देते हैं, जुदा कर देते हैं। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग्ड इन ट्राउजर्स, और आप पैजामा आप इस तरह से ऐसा पैंट पहन करके पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं। गो एंड चेंज इनटू कुर्ता पैजामा, सो गो एंड चेंज इनटू कुर्ता पैजामा पहन लीजिए जा करके। महादेव जी लैंड ही में पेयर, महादेव जो उनको सचिव हैं उनको बोले कि जाइए और उनको प्लीज़ एगो पैजामा कुर्ता का सेट इनको सप्लाई कीजिए। महादेव देसाई गेट्स अप, वो खड़े हो गए। ही लीड्स कृष्ण चंद्र आज़ाद टुवार्ड्स द रूम ऑन द राइट ऑफ द वरांदा, वो वरांदा के राइट साइड की तरफ उनको लेकर के गए। कस्तूरबा गांधी कम्स आउट ऑफ द बिग रूम विथ 3 स्मॉल अर्थन मग्स, और मिट्टी का 3 गो मग लेकर के आई, मग जिसमें पानी निकालेंगे। इन हर लेफ्ट हैंड एंड ए बिग अर्थन मग इन हर राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में दोनों में मग लेकर के आई।
शी पोर्स लस्सी इंटू वन स्मॉल मग, लस्सी मतलब दही का जो बनता है उसको लस्सी बोलते हैं, मट्ठा। शी पोर्स लस्सी इंटू वन स्मॉल मग एंड ऑफर्स इट टू हर हस्बैंड, गांधी जी को दिए अपने हस्बैंड को। देन शी पोर्स द वे इंटू टू अदर मग्स, और तब दो जो और मग थे उनमें भी डाल दिया। शी कवर्स देम विथ स्मॉल टेराकोटा डाइसेज, उसको टेराकोटा डाइस से उसको कवर कर दिया, ढक दिया, ताकि उसमें कुछ पड़े नहीं। एन असिस्टेंट एडिटर, ए वाइजेंड ओल्ड मैन विथ थिक ग्लासेज, कम्स फ्रॉम द बैक रूम विथ ए गैली ऑफ प्रूफ, और तब एक समझदार आदमी, वाइजेंड ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग थे, असिस्टेंट एडिटर थे, वो चश्मा लगाए, प्रूफ फिनिश कर करके बाहर आए। असिस्टेंट एडिटर, बापू योर एडिटोरियल नोट्स, वो आकर के सौंपे कि बापू दीज आर योर एडिटोरियल नोट्स, देयर आर सम मिस्टेक्स एंड देयर आर सम मिस्टेक्स इन दीज नोट्स। गांधी रीड देम टू मी, इनको मुझे पढ़ के बताओ, रीड देम टू मी। द असिस्टेंट एडिटर, पढ़ के बताइए। द असिस्टेंट एडिटर रीड्स इन हाल्टिंग इंग्लिश। गांधी जी आस्क फॉर द गैली, ही स्कैन्स करेक्शंस, देन ही करेक्ट्स द मिस्टेक्स एंड हैंड्स द गैली बैक। और जो प्रूफ का पेपर था उसको गांधी जी पढ़े और उसको वापस कर दिए, अपनी गलती को ठीक करके। गांधी जी टू असिस्टेंट एडिटर, हैव सम लस्सी बिफोर यू गो एंड गिव्स मी सम, जाने के पहले कुछ लस्सी पी लीजिएगा और मुझे भी दीजिएगा। द असिस्टेंट एडिटर पोर्स इनटू एन अर्थन पॉट एंड गिव्स इट टू महात्मा फर्स्ट, उन्होंने लस्सी को डाला एक बर्तन में और उसको गांधी जी को दिया पहले। देन हेल्प्स हिमसेल्फ, और तब अपने लिए लिया। कृष्णचंद्र आज़ाद रिटर्न्स बिहाइंड महादेव देसाई, और महादेव देसाई के पीछे पीछे कृष्णचंद्र आज़ाद भी आ गए। द विजिटर हैड रोल्ड अप हिज लूज पैजामा फार टू बिग फॉर हिम, पैजामा जो वो पहने थे वो बहुत बड़ा था, तो उसको मोड़ करके पहने थे, नीचे से रोल कर लिए थे ऊपर। एंड ही वॉक्स सेल्फ कॉन्शसली लुकिंग एट हिमसेल्फ स्माइलिंग अनकम्फर्टेबली, और एंड ही वॉक्स सेल्फ कॉन्शसली लुकिंग एट हिम, and he walks self-consciously looking at himself smiling uncomfortably, और वो सेल्फ कॉन्शियस तो थे ही, अपने प्रति जागरूक, अपने ऊपर देख भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फीलिंग इन दैट ड्रेस अनकम्फर्टेबल, उनको वह सूट कर नहीं रहा था। आई फील लाइक द पोएट टी.एस. एलियट्स प्रूफ रॉक, वो बोले कि टी.एस. एलियट जो अंग्रेजी के पोइट थे उनकी लिखी हुई कविता है प्रूफ रॉक, में प्रूफ रॉक इज द मेन कैरेक्टर। तो आई फील लाइक द पोएट टी.एस. एलियट्स प्रूफ रॉक हु सैंग, उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं टी.एस. एलियट के प्रूफ रॉक जैसा लगता हूँ जो गाता था आई शैल वियर माई ट्राउजर्स रोल्ड, उसका एक लाइन है जिसमें जो है आई शैल वियर माई ट्राउजर्स रोल्ड, जो ट्राउजर को मोड़ करके पहनना पड़ा था, तो इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया टी.एस. एलियट के प्रूफ रॉक से, जिसमें प्रूफ रॉक ने लाइन गाया था। गांधी दे से डू इन रोम एज रोमन्स डू, उनका कहने का मतलब है कि रोम में हो तो जैसा रोमन करते हैं वैसा कीजिए, फॉलो द मैनर्स ऑफ द प्लेस। यू डोंट फाइंड एनी इंग्लिश मैन वियरिंग ए धोती, आप किसी इंग्लिश मैन को धोती पहनते हुए नहीं देखिएगा। दे थिंक वी आर अनसिविलाइज्ड, वे कहते हैं कि हम लोग असभ्य हैं। दे डोंट सी दैट इन दिस हॉट कंट्री वी हैव टू वियर स्कैंटी क्लॉथ्स, वो नहीं समझते कि इस गर्म मुल्क में हम लोगों को कपड़े कम से कम पहनना होता है। दे वियर सूट्स, वे सूट पहनते हैं, अल्पका सूट्स, एकदम 3 पीस सूट, इफ़ नॉट सर्ज सूट्स, अगर पूरा मेंटेन नहीं है तब भी सूट ही पहनते हैं। इवन इन द समर मंथ्स, गर्मी में भी, एंड बिग बूट्स, बड़े बूट पहनते हैं। आवर बाबूज कॉपी देम, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं बाबू लोग, वो लोग कॉपी करता है उनके स्टाइल को। ये गर्म मुल्क है तो यहाँ गर्मी वाला कपड़ा होना चाहिए, लूज क्लॉथ होना चाहिए, कम कपड़ा होना चाहिए, यहाँ 3 पीस की क्या ज़रूरत है। आई रेड समवेयर दैट क्लाइव टुक ऑफ हिज जैकेट, लॉर्ड क्लाइव जो आया था प्लासी की लड़ाई के समय, जो बंगाल का ये अंग्रेज़ों का हेड था, उसने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो ये लॉर्ड क्लाइव की बात कर रहे हैं। केसी आज़ाद बोले
आई रेड समवेयर दैट क्लाइव टुक ऑफ हिज जैकेट। जब क्लाइव वहाँ आया तो अपना जैकेट उतार दिया। वार में स्टॉकिंग्स, गर्म कपड़ा सब, एंड टॉल बूट्स, और लंबे बूट जो थे वो भी, इन द बैटल ऑफ पलासी। पलासी की लड़ाई में क्लाइव ने अपना अंग्रेज वाला वेशभूषा सब खोल के फेंक दिया था। हिज सक्सेसर्स वियर इवनिंग ड्रेस। उसके उत्तराधिकारी इवनिंग ड्रेस पहनते हैं। इवनिंग ड्रेस मतलब लूज क्लॉथ। इवन इन आसाम समर हीट टू गो फॉर डिनर इन देयर क्लब्स ऑन द प्लांटेशंस। यहाँ आसाम में काम करने वाले जो अंग्रेज हैं वो प्लांटेशन में दिन में काम करवाए और शाम में क्लब में जाते थे तो इवनिंग ड्रेस पहन करके। इवनिंग ड्रेस क्या होता था? जिसमें वह आराम महसूस करें, मतलब 3 पीस नहीं, वो लूज क्लॉथ पहन के जाते थे। मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन दे से वी मस्ट एडमिट दे हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। ये मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन की तुलना मैड डॉग से की जाती है। ये अंग्रेज का विचार था, किसी हिंदुस्तानी ने नहीं कहा था कि मैड मैन एंड इंग्लिश मैन एक ही होते हैं। मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन आर सेम। यह अंग्रेज का ही विचार था, किसी कोई अंग्रेज का कमेंट है। तो वो बोले किसी आज़ाद साहब, इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों में सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनमें हंसी मजाक करने की आदत है। वो ये अंग्रेजी बोलने वाले के विषय में भी कहा जाता है कि व्हेन टू इंग्लिश स्पीकर्स आर टॉकिंग इट सीम्स दैट टू डॉग्स आर फाइटिंग। ओके, so this is comment, this is not the same, this is just like funny comment. They laugh at themselves because English people are able to laugh at themselves also. We are too serious and we are too serious about that. हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, वे लोग हंसी मजाक भी करते हैं। वो एक ऐसी आज़ाद या अंग्रेज़ों के की बड़ाई थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी बोले मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि आपका कहना सही हो। आई रेड पंच एवरी वीक, आई रीड पंच एवरी वीक व्हेन आई वॉज इन लंदन। आई रेड V2 है, या आवाज़ है तो V2। आई रेड पंच एवरी वीक व्हेन आई वॉज इन लंदन। जब मैं लंदन में था तो पंच में हर सप्ताह पढ़ता था। यस दे ऑल्सो लाफ हियर बट मोस्टली एट द खानसामा हु बर्न्स देयर टोस्ट। हाँ, अंग्रेज हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन उस खानसामा पर जो खाना बनाते समय टोस्ट वगैरह जला देते हैं, इसके लिए वो लोग हंसते हैं। और द धोबी हु सिंग्स द मेम साहिब फ्रॉक, और उस धोबी पर हंसते हैं जो मेम साहिब के फ्रॉक को जला देता है आयरन करते समय। ही पॉइंट्स टू द किचन विथ लस्सी टू महादेव हु सर्व्स द विजिटर एंड देन हिमसेल्फ। तब वो किचन की तरफ इशारा किए महादेव जी को कि वो लस्सी लेकर के आए और विजिटर को भी दिए और तब खुद भी लिए। तब महात्मा टर्न्स टू द विजिटर। अब महात्मा विजिटर से बात कर रहे हैं। विजिटर कौन है? केसी आज़ाद। ठीक है, गांधी जी टॉकिंग। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? केसी आज़ाद। आई वांट टू शो यू माई नोवेल। मुझे आपको अपना नोवेल दिखाना है, जो मैंने किताब एक लिखी है नोवेल। आई वांट टू शो यू। गांधी, नोवेल व्हाट इज इट अबाउट? सम बॉय एंड गर्ल अफेयर। नोवेल में क्या होता है जनरली? गांधी जी पूछ रहे हैं कि बॉय और गर्ल का अफेयर होता है, लड़का लड़की का प्रेम कहानी, यही है क्या? एगो लड़की होगी एगो लड़का होगा, दोनों में प्यार होगा, यही ना होगा। द ओल्ड मैन लुक्स अप एट केसी ए। ओ केसी आज़ाद पर की तरफ गांधी जी देखे ही बोल करके। फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, चश्मे को ऊपर से देखे। नाउ इट इज़ अबाउट योर काइंड ऑफ लव। लेकिन किसी आज़ाद बोले कि नहीं महात्मा जी, ये आप जो प्यार करते हैं उस स्तर का प्यार है। व्हाट इज माई काइंड ऑफ लव? मेरा प्यार कैसा है? किसी इट इज़ अबाउट एन अनटचेबल। यह है कि अछूत आदमी के विषय में है। इट इज़ अबाउट एन अनटचेबल। अछूत, गांधी जी का मेन उद्देश्य रहा अछूत उद्धार। अछूतों को उद्धार करो। जो अछूत है, जिसको लोग स्पर्श नहीं करना चाहता है, उसको भी इंसान का दर्जा मिलना चाहिए। यही सब तो गांधी जी की खासियत थी, जिसके चलते वो भगवान बने। तो ठीक है, इट इज़ अबाउट एन अनटचेबल। ये नोवेल क्या है? तो अनटचेबल के विषय में है। ये स्वीपर बॉय, एक मेहतर का लड़का है, वो बाखा उसका नाम है। गांधी, यू मीन हरिजन? वो हरिजन है। वी डोंट यूज द वर्ड अनटचेबल हियर। यहाँ हम लोग अछूत शब्द का यूज नहीं करते, उसे हरिजन कहते हैं। देसाई, हरिजन सन ऑफ गॉड। कृष्ण चंद्र आज़ाद बोज हिज हेड इन शेम एट द फॉक्स पास ही हैज मेड। उन्होंने जो कमेंट किया था कि सन ऑफ गॉड,
आश्चर्य की बात, इस पर थोड़ी उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। कृष्णचंद्र आज़ाद को उन्होंने सर अपना झुका लिया श्रद्धा से, थोड़ी शर्मिंदगी फील हुई। अब ये क्वेश्चन आंसर है आपको, ठीक है। जितना पढ़े हम लोग तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द सेज रेफर्ड टू हियर, व्हाट इज ही डूइंग व्हेन द सीन ओपन्स। The sage is Mahatma Gandhi. He is resting back on a wooden piece of sawed timber plank rest chair. Who is Kasturba Gandhi? What is she doing when Kisi Azad arrives? Kasturba Gandhi is Mahatma's wife. She is making smooth Mahatma Gandhi's stomach with a wet towel, pats the stomach with light slaps, assembles the madpack material, heaves his body up and withdraws. वो मिट्टी का लेप लगा रही हैं और उसको तौलिया से पोंछ के साफ कर रही हैं। नेम द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल। टेबल पर कौन कौन ऑब्जेक्ट है, इसका लिस्ट बनाइए। द टेबल केप्ट ऑन द लेफ्ट महात्मा गांधी हैज बुक्स एंड पेपर्स, द पेपर्स आर पाइल्ड ऑन इट। Table on the right side has pencils, pens, ink pots, and a white vessel covered with a wet cloth. 3 brass cups are arranged beside it. Who is Mahadev Desai? What sort of a man is he? Mahadev Desai is the secretary of Mahatma Gandhi, who is a physically sound person with a strongly built appearance. वो मजबूत कद काठी वाले इंसान हैं, उनके सचिव हैं। कौन? महादेव देसाई। What does कस्तूरबा गांधी do at the arrival of केसी आज़ाद? आज़ाद साहब आए, उस समय वो क्या कर रही थी कस्तूरबा गांधी? कस्तूरबा गांधी इज मूविंग ए लीवर ऑफ द बेड चेयर व्हेन केसी आज़ाद अराइव्स देयर। शी हैज इवन लिफ्टेड द बैक ऑफ द चेयर, शी देन लीव्स द प्लेस। दिस इज what comment does Gandhi make on Azad's suit? Yes, when Gandhiji has seen Azad putting on a suit, he immediately passes on comment over it. He has asked whether Azad does not feel hot in the suit. He has further added that the English people have preferred cotton clothes. Why does he not? In course of their conversation, Gandhiji passes a pinching remark on him, telling that he looks like a monkey. It is Gandhiji's satirical comment on Azad. ये व्यंग्यात्मक कमेंट था उनका आज़ाद पर। What is Azad's reply to this comment? Azad's reply was tit for tat. He said that Mahatma Gandhi also looked like a monkey when he was wearing suit and hat in London. What does Gandhiji realize about foreign clothes? When did he realize this? When Gandhiji came from South Africa, he realized that in our country we should wear loose clothes, scanty clothes, because it is hot country, and 3-piece suit or pack-up dress was must in that country where it is cold. But in a country like ours, we should wear a scanty of clothes, loose clothes. Who sang I shall wear my trousers rolled? ये प्रूफ्रॉक sang in प्रूफ्रॉक sings in by T.S. Eliot. T.S. Eliot का है प्रूफ्रॉक, वो गीत गाया था I shall wear my trousers rolled. So T.S. Eliot's प्रूफ्रॉक sang this song I shall wear my trousers rolled. Why do we in India have to wear scanty clothes? Very simple. In India we have to wear scanty clothes because it is a hot country, and here tight fitting cloth is not required. We want to wear, we feel easy when we wear loose clothes. Why has Azad come to Gandhi? Azad has come to Gandhi to show his novel that is about a Harijan, about untouchable. So I feel that this part of the chapter has been completed. The next part will be taught very soon in the next video. Wait for that. Have a nice day.